जय हो जय हो लगा देना गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो बोलो सदगुरु देव की जय। गढ़ड़ा शामળાજી શામળિયા ભગવાન આદ્ય જગતગુરુ કરસનદાસજી મહારાજ પણ એ ભૂમિને પાવન કરી છે, એ મંદિરે પણ ગયા છે, દર્શન પણ કર્યા છે। એ શામળિયા ભગવાનના મહંત પૂજ્ય દલપત બારજી મહારાજને વિનંતી છે કે આપ પોથી પૂજન કરી અને પ્રેમના પુષ્પ તરીકે આપ સોલથી પૂજ્ય મહારાજ શ્રીનું અભિવાદન કરશો। એ જ ઘટનાક્રમમાં ઊંચી દનાલ ભગત શ્રી હરિભગતને વિનંતી છે કે આપ પણ પોથી પૂજન કરી અને આપની ભાવના સોલ અર્પણ કરી અને મહારાજ શ્રીનું અભિવાદન કરશો। બોલો સદગુરુ દેવ की जय। हाँ, साथे वंदना बेन पण दलपत बारजीजीना दीकरी શામળિયા ભગવાનની પ્રતિકૃતિ અર્પણ કરી છે। હરિભગત મહારાજ શ્રીનું અભિવાદન કરી રહ્યા છે। સંકલ્પ માટે ટીમ તૈયાર રહે। એ જ ઘટનાક્રમમાં હું નામ બોલું એ પ્રમાણે રવજીભાઈ માધવજીભાઈ મુંબઈ મહારાજ શ્રીની અભિવંદના માટે પોથી પૂજન કરશો। ડોક્ટર એન કે પટેલ સાહેબ, પી આર પટેલ મુંબઈ, પ્રવીણભાઈ રવજીભાઈ મુંબઈ, હસમુખભાઈ લંડન, શાબાશ। બાબુભાઈ ડાયાભાઈ પટેલ જગમેર કંપા, અમૃતભાઈ અમીચંદભાઈ વડાલી જીનવાળા, મહારાજ શ્રી બ્રિટન એટલે કે લંડનમાં પણ સત્સંગ કરીને આવ્યા છે અને હસમુખભાઈને ત્યાં પગલાં કરીને આવ્યા છે। એવા હસમુખભાઈ સ્પેશિયલ લંડનથી કથા સાંભળવા માટે આવ્યા છે। જય હો જય હો।
વડાલી કંપા પૂજ્ય શામજી બાપા. હા, બાપા આવો. મહારાજ શ્રી એપ્રિલ મહિનામાં પણ ફરીથી લંડન જવાના છે. गुजराती में बोला हमको, मराठी में नहीं बोला. मी मराठी मानुस आहे छतं पण ए गुजराती में बोल्यो. हाँ, पोथी पूजन माटे. यस, बापा जाय છે ની પાછળ પાછળ ફોલો. રામપુરા કંપાથી શિલ્પા નામની દામાવાસની વહુહારુને એક વિનંતી મળેલ. એ વિનંતી અહીંયા જમા કરાવેલ છે. બહેનોની વિનંતી છે, જેની હોય એ મારો સંપર્ક કરે. ખોવાઈ રામપુરા છે પણ મળી અહીંયા છે. હડમતિયા રામપુરાથી માતાજીના ભગત બાપા આવ્યા છે. આપ પણ આવો જરા. પ્રેમજી બાપા. ઓહો, વાહ વાહ ભગત, જય હો પ્રેમજી બાપા, જય હો. આપો. સવારે આપણે જાહેરાત કરી હતી એ પ્રમાણે અત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ શતાબ્દી નિમિત્તે સંકલ્પ સ્વામી વિવેકાનંદ સાર્કસતી સમારોહ નિમિત્તે આખા ભારત વર્ષમાં 25મી ડિસેમ્બરથી 27 ડિસેમ્બર 3 દિવસ આખા ભારતમાં પ્રત્યેક નાગરિક સ્વામી વિવેકાનંદજીના જે કાર્યો છે એ નિમિત્તે આપણે સંકલ્પ લેવાનો છે. રાષ્ટ્ર માટે, સમાજ માટે, દેશ માટે આપણે શું કરી શકીએ, દરિદ્ર નારાયણની શું સેવા કરી શકીએ, એ નિમિત્તે આપણે સૌએ આપણા મનમાં સંકલ્પ લેવાનો છે કે હું આ એક વર્ષ માટે 150મી જયંતિ એક વર્ષ માટે કાર્યક્રમો ચાલવાના છે સ્વામી વિવેકાનંદજીના. તો એ નિમિત્તે આપણે પોતે રાષ્ટ્ર માટે, સમાજ માટે શું કરીએ એવો મનમાં સંકલ્પ લેવાનો છે. હવે અમે અહીંયા સંકલ્પ ગીત ગાઈશું, તમારે સાંભળવાનું છે. देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है. भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है. औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे. देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया. सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला. त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखे. देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे. जो पिछड़े हैं उन्हें बढ़ाए, प्यासी धरती को पानी दे. हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे. देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. ભારત માતા કી. હા, લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપા મંજુલાબેન અને શાંતિભાઈ આપ આવો અને પોથી પૂજન તદપશ્ચાત સાયમ સત્રની શુભ શરૂઆત કરીશું. પધારો.
हरिओम 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 हरि ओम हरि सत्य स्वरूपा श्री गुरुदेवा आनंद रूपा जय सत्य स्वरूपा श्री गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा। ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नोज्वरः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरु इमामशाह महाराज की, श्री सतपन सनातन धर्म की, गोपाल कृष्ण भगवान की, पवन सूत हनुमान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, आदि शक्ति मात की, कुलदेवी उमिया मात की,
आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की, जगत गुरु नानक दास महाराज की, गुरुदेव जगन्नाथ महाराज की, सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम पिता परमेश्वर गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। હવે ત્રીજી વાર બોલું તો થોડી મોટી અવાજ આવશે ફરીથી ને? उपस्थित संत महात्माओं के चरणों में नमस्कार करते हुए और आप सभी हरिभक्तों को अभिवादन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। भजन द्वारा भगवान को प्रार्थना करे कि मेरे जीवन को कुंदन बना दो, उपयुक्त बना दो, उपयोगी बना दो। कई बार हमने कहने की कोशिश की कि भले आप योगी ना बन पाओ, भले ही आप योगी ना बन पाओ, लेकिन उपयोगी तो जरूर बनना। उपयोगी बनना, उपयुक्त बनना, पात्र बनना, काबिल बनना। और इसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है उपयोगी बनने के लिए। इसलिए उपयोगी बनने की जरूर आप कोशिश करना। आइए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। कुंदन का मतलब होता है गहना। हमारे जीवन को गहना बना दो, क्योंकि गहना जब बनता है ना, उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है। पहले अग्नि परीक्षा और बाद में फिर उसको आकार दिया जाता है, उसको कहते हैं कुंदन। तो हमारी भी परीक्षा ले लो और हमारे जीवन को भी आकार दे दो, ये उसका भाव है। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें
में हूँ तेरे चिंतन की माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो, मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो। दुनिया तेरी मुझे गले से लगाए, दुनिया तेरी मुझे गले से लगाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु घटाओ की रिमझिम पवन के तराने, घटाओ की रिमझिम पवन के तराने, घटाओ की रिमझिम पवन के तराने, घटाओ की रिमझिम पवन के तराने। लताओं का नाच और वृक्षों के गाने, लताओं का नाच और वृक्षों के गाने। नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी। अमर ज्योत तेरी उधर नजर आए, अमर ज्योत तेरी उधर नजर आए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, जगत को मैं अपना परिवार समझूं, जगत को मैं अपना परिवार समझूं, जगत को मैं अपना परिवार समझूं। परिवार को मैं तेरा उपकार समझूं,
परिवार को मैं तेरा उपकार समझूं। कुसंग लोभ अभिमान द्वेष आलस, कुसंग लोभ अभिमान द्वेष आलस, कोई इनसे मुझको सताने न पाए, कोई इनमें मुझको सताने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए। ये फोटो मुझे देना सब। जब जब मैं हंसता हूं ना वो फोटो ही खींचता है। अभी हंस हंस के थक गया मैं। अभी फोटो ले रहा है तो हंसना तो पड़ेगा। अब तो कठिन हो चुका है ना हंसना। फोटोग्राफर बोलेगा स्माइल प्लीज, तब आएगी, और वो भी फोटो में दिखेगी, जबरदस्ती हंसता है। ये रियल नहीं है। क्योंकि जो खुद की मस्ती है ना उसको हम भूल चुके हैं। हमने ढूंढा कि गाड़ी में आनंद मिलेगा, टीवी में आनंद मिलेगा, जाहो जलाली में आनंद मिलेगा। गलत जगह उस मस्ती को, आनंद को ढूंढने गए, इसीलिए कुछ मिली नहीं। जहां ढूंढना था वहां नहीं ढूंढी। नहीं तो फिर फोटोग्राफर को बोलने का कोई चांस ही नहीं, स्माइल प्लीज। हमेशा आप हंसते रहते। રૂઠેલાને મનાવતા આવડે છે, ગમમાં ડૂબેલાને હસાવતા આવડે છે। અમે દુઃખી લોકોને ખુશ કરી દઈએ છીએ અને લોકો એમ કહે છે કે એ પાગલને હસાવતા જ આવડે છે। હવે ફાવી ગઈ ગુજરાતીને। जिंदगी एवी रीते ना जीवो कि कोई फरियाद करे। जिंदगी एवी रीते ना जीवो कि कोई फरियाद करे। जिंदगी एवी रीते जीवो कि कोई फरी याद करे। आ जिंदगी फरी याद करे। इसी तरह हमें जीवन को जीना पड़ेगा। सत्संग सुनने के बाद जीवन में उतारना पड़ेगा। लेकिन
कई बार हमें ना चालाकी कर देते इसमें भी। एक दिन एक गुरुजी ने कहा अपने शिष्य को, कुछ पैसे दिए और बोला इसमें कुछ पेड़े लेके आओ, पेड़ा। तो शिष्य गया पेड़ा लेने, पेंडा। उतने पैसे में 3 आए। जब लेकर आ रहा था तो सोचा कि ऐसे भी तो ये 3 जब मैं दूंगा गुरुजी को तो एक तो मुझे मिलना ही मिलना है, तो अभी क्यों ना खा लूं। एक खा लिया। अभी थोड़ी देर आगे चला, थोड़ी देर जाने के बाद सोचा कि ऐसे भी अभी 2 है, 2 में से एक तो मुझे ही मिलना है, क्यों ना खा लूं। तब बाद में भी तो खाना है, अभी जरूरी है तो अभी खा ले। दूसरा भी खा गया। अब बाकी रहा। गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी पेड़ा लेके आया। बोले एक ही आया? नहीं, बोले गुरुजी 3 आए थे। मैंने सोचा ऐसे भी तो आप दोगे तो मैंने खा लिया, 2 बाकी थे, आप अकेले थोड़ी ना खाते, इसलिए मैंने एक खा लिया। बोले तूने कैसे खा लिया पेड़ा? तीसरा भी खा लिया। बोले ऐसे खाया। गुरु गया गोकल। नहीं, यहाँ पे इतना ही बैठते हैं। गुरु गया गोकल। मेरी तो मर्जी पूरी हो गई पेड़ा खाने की। लेकिन तू चालाकी ओछी कर, भगवान ने मेहरबानी વધારે થશે। तू चालाकी ओछी कर, भगवान ने मेहरबानी વધારે થશે। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जिस तरह की भक्ति होगी उस तरह का सामने से रिप्लाई आएगा भगवान का, उस तरह की दया होगी। जिस तरह की, जिस श्रद्धा के साथ याद होती है ना भगवान की, भगवान उसी श्रद्धा से दया करता है। फिर हमारे ऊपर भगवान छोड़ता है कि किस तरह आपको याद करना है और किस तरह मुझे दया करनी है आपके ऊपर। तो इसीलिए बस जीवन को जिए। ये इसके लिए कहना पड़ता है कि जीवन को जिए, क्योंकि कई बार हमने देखा कि अबे मेरे जीवन में तो कुछ नहीं है, बस हम तो आ गए, बस कोई आनंद ही नहीं है, बस कोई इच्छा पूरी ही नहीं होती, रोते रहते हैं। जीवन जीवू सहेलू नथी, मारे मौत पहला मरू नथी, मरता मरता जीववू पड़े एवं जीवन मारे जीवू नथी। इसको मृत्यु कहा, नकारात्मकता को मृत्यु कहा और सकारात्मकता को जीवन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है उसकी मृत्यु हो चुकी है, और जिसके अंदर आत्मविश्वास है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, दुख डरता है उससे, परेशानियां उसके नजदीक जाने से भी कतराती है। इतने आत्मविश्वास से खुद को भर दो, वो जीवन है। और ऐसे आप करोगे ना, मैंने उधार बेचा, ऐसे टेंशन में, चिंता में, तो समझना ये मृत्यु है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कब तक दवा खिलाए। कल हमने अलग ढंग से कहा था इसको, शायद आपको ये फर्स्ट नंबर आपको ये बोल रहे थे, महाराज ये तो हमजे छे, तमे जे कहो छो ने ये हमजे छे, अने मजा पण आवे छे, पण हवे एक बतावीए उतारशे कई रीते, उतरशे कई रीते, ए समजाओ। એને કીધું ઉતારવું તો તમારે પડશે, બધું જ મહારાજ કરે તો તમે કરશો શું?
तो इनके लिए मैंने इसको फिर चेंज कर दिया। मैंने बोला, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, महाराज बिचारे क्या करे, कब तक कथा सुनाए। अगर आनंद स्वरूप परमात्मा के इस चरित्र को, आनंद स्वरूप सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा के इस चरित्र को सुनते हुए भी अगर वही चिंता, वही टेंशन, वही शोक, वही विलाप, वही आसक्ति, ये सब कुछ रहता है, तो महाराज क्या करेंगे उसमें? ये सुनने के बाद तो बस अपनी मस्ती जरूरी है। और कौन इस दुनिया में ऐसा है जिसको दुख नहीं है? सबको है, सबको दुख है। आपने सुना होगा लेकिन फिर गा देते उसको। छगन बाबा, दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो, दुनिया का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। अगर पैर में जूता ना हो तो चिंता मत करना। अगर पैर में पहनने के लिए जूता ना हो तो चिंता मत करना। भगवान ने कई लोगों को तो पैर ही नहीं दिए। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कभी कोई शौक हो, चिंता हो तो अनाथाश्रम की मुलाकात करके आना। जो मुख बधिरों की स्कूल चलती है वहाँ थोड़ा घूमने निकल जाना, आपका गम निकल जाएगा। उनको देखना, किसी को तो कान नहीं दिए, किसी को सुनाई नहीं देता, कोई बोल नहीं पाता, किसी को हाथ नहीं दिए, किसी को पैर नहीं दिए। दुनिया में आटा लगाना, दुनिया में घूमना। किसी ने मुझे पूछा, महाराज जी ये दुख कम कैसे होता है, इसकी कोई दवाई? अब अपने मेडिकल में तो सारी दवाई मिलती है। मैंने कहा है ना। बोले दवाई का नाम क्या है? उसने पूछा। मैंने बोला इसकी एक ही दवाई है। जब जब दुख महसूस हो, जब जब आप रो रहे हो ना, तब किसी दुखी आदमी को मिलना, तेरा दुख हल्का हो जाएगा। बस इतना ही करना है, किसी दुखी को मिलना। कभी दुख हो ना तो हम पड़ोस में जाके बैठ जाते, फिर बताते मेरी वहू छे ने, હવે શું કેવું તમને, જવા દો, રેવા દો, મારે નથી કેવું, નહીં તો તમે કહી દેશો, પછી વાંધો અને મારા વહુને ખબર પડી જાય ને તો ભૂકો કાઢી નાખશે મારો.
પછી જેની પડોશમાં તમે બેઠા હોય ને, જેની બાજુમાં એ કે નહીં નહીં કહી દો, હું નહીં કહીશ, કહી દો તમે, ભરોસા રાખો મારા ઉપર, એને પણ ઇન્ટરેસ્ટ આવે. કહી દો એ કે મારી વહુ એને ખાવાનું નથી આપતી. ગરમ તો ક્યારેય નહીં આપે, એ સવારે કંઈક બનાવે ને એ સાંજે આપે ને સાંજનો સવારે આપે. આવી રીતે કરે મારી વહુ. એ જેની ઘરે તમે જાઓ છો ને કેવા, એ સાંભળી તો લે, પછી કે તારું થઈ ગયું પૂરું? એ કે હા થઈ ગયું. મારા કરતા તો તારું ભલું એ માં, તને તો સવારની સાંજે મળે, સાંજની સવારે, મારે તો 2 દિવસ પહેલા નહીં મળે. એવું है तो तारा करता तो मारी वो सारी है. जिसको आप कहने की कोशिश करोगे ना कि हाँ हमें ऐसा दुख है, वो सुन तो लेगा, लेकिन अनुभव करना आपने किया भी होगा, उसके तुरंत बाद वो आपको कहेगा रुकना, ये तो ठीक है आपका, लेकिन मेरे देखो इतनी सारी प्रॉब्लम है. आप अनुभव करना, इस बात को कभी अपने दुख को कहने की कोशिश करना, सामने वाला कहेगा अरे तेरा तो ठीक है लेकिन मेरा तो तेरे से भी ज्यादा दुख है. इसलिए दुनिया में कितना गम है, सबको दुख है, कष्ट है, ये सारी चीजें है, लेकिन संतों का कहना है इनसे हमें भयभीत होना नहीं है, आत्मविश्वास से इतना भरपूर हो जाना है कि ये हमें घबराए. इसलिए शुरुआत में विवेकानंद जी का नाम आया तो विवेकानंद जी याद आए. और जब विवेकानंद जी याद आ जाते हैं तो आत्मविश्वास याद आता है. इसलिए हमारे अंदर एक आत्मविश्वास हो, जीवन को जीने की कोशिश हो. किसी ने कहा जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया. जीने का मतलब मैंने जीने में पा लिया. जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया. जिसका भी गम था उसे अपना लिया. जिसका भी गम था उसे अपना लिया. आप रोकर भी गम को भुला ना सके, आप रोकर भी गम को भुला ना सके, मैंने हंसी की आड़ में गम को छुपा दिया. एक अस्त्र है गम को छुपाने का, आपकी हंसी, स्माइल. लोग कहते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो ये कहा जानते हैं ये एक अदा है गम छुपाने की. ये तो एक अदा है. बहुत लोग कहते हैं ना महाराज बनी गया ना तमे, सारू थयु, बची गया तमे. હવે આ લોકોને પૂછો બચી ગયા કે કેમ? વધી ગયું, બચી નથી ગયા. સંતને સંતપન નથી મોફતમાં મળતા, એને એના મોલ ચૂકવવા પડતા. સંતને સંતપન નથી मोफतમાં મળતા. अगर साधारण जीवन जी रहे हो तो आपको आपका ही दुख है, लेकिन एक संत बन के जीवन जीने की कोशिश करना, आपको सारे लोगों का दुख लेकर जीना पड़ेगा. इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जीते हैं, मुस्कुराते रहते हैं. तो इसीलिए ये मुस्कुराहट हमारे जीवन में अगर आ जाए तो सारे गम निकल जाते हैं. मेरे कहने का मतलब कि बस हमें आत्मविश्वास से भरपूर जीवन को जीना है. सुबह में हमने सुना सद्भक्त राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को, और बाद में राम जन्मोत्सव. इतनी कसौटी सहन करने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य का जो पंथ था, जिसके ऊपर वो चल रहे थे, उसको छोड़ा नहीं है. जो भी परिस्थितियां निर्माण हुई, उस परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया है. इसीलिए ये सारी ताकतें, आप अगर भगवान के पास जाने की कोशिश करोगे तो परमात्मा ऐसी ताकतों का निर्माण करेगा कि आप जा ही नहीं पाओ. लेकिन जो इनको भी सहन करके आगे बढ़ेगा,
उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा जो हमें छोड़ेगी। आज भले साईं बाबा के बैठने के लिए सोने का सिंहासन बनता हो, इतनी जाहो जलाली साईं बाबा संस्थान की आज इकट्ठा हुई हो, लेकिन जब साईं बाबा थे ना तो कोई पूछता नहीं था। कितनी तकलीफ थी, कितनी निंदा हो रही थी, कितनी कसौटी थी। क्या कहती थी दुनिया इनको। जब नरसिंह मेहता थे तो नहीं पता थे ये कौन है। जब मीराबाई थी तो उसको बावरी कहा, उसको पागल कहा। ज्ञानेश्वर थे तो उनके भी निंदा हुई। संत तुकाराम महाराज थे तो उनको तो गन्ने से मारा लोगों ने। किसी को इस दुनिया ने नहीं छोड़ा तो हमें भी छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन हम खुद को मजबूत बनाएं। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज को भी जहर पिलाने की कोशिश इस दुनिया ने की। क्यों उनको जहर पिलाकर समाप्त करने की कोशिश हुई? क्योंकि जब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जा रही थी तब उसका विरोध ये सदगुरुदेव कर रहे थे। 1440 के इतिहास को याद करना, उस वातावरण को याद करना 1440 का, जब अवतार कार्य सदगुरुदेव का हुआ, वो वातावरण कैसा था। लेकिन उस वातावरण भी इस वैदिक परंपरा को आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, सत्य के पंथ को उजला ही रखना है, आर्य वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार करना है, अहिंसा की तरफ इस दुनिया को ले जाना है, तेज की ओर इस दुनिया को ले जाना है। ये उनका प्रयास था। उन्होंने बचपन से ही, जब वो बचपन में अपने घर पे थे तो एक ज्योत प्रकट करके ध्यान किया करते थे, तो उनका विरोध भी होता था। पहले से ही उन्होंने ज्योत का ही महत्व बताने की कोशिश की, वेदों के 4 वाक्यों का प्रचार करने की कोशिश की, कुंभ कलश पूजा के महत्व को ही बताने की कोशिश की, विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बताने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा पत्री के माध्यम से एक इंसान को निर्माण करने की कोशिश की, क्योंकि 1440 का जो समय था इंसानियत खत्म हो चुकी थी, दुर्भाव पैदा हुआ था, अधर्म तकलीफ कर रहा था समाज को। तब इस शिक्षा पत्री का गठन किया, नियमों का गठन किया, उसका प्रचार किया और लोगों से जबरदस्ती नियमों को पालन करवाते थे। क्यों? एक सत्य के पंथ की स्थापना करनी थी, धर्म की स्थापना करनी थी, इंसानों को निर्माण करना था। और इनको रोकने के लिए मोहम्मद बेगड़ा जो अहमदाबाद का राजा था, उसने जहर पिलाया, मांस खिलाकर उनके नियमों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन वो तो अंतर्ज्ञानी थे, वो समझ गए। बहुत कुछ कोशिश की उस मोहम्मद बेगड़ा ने, लेकिन बाद में उसी को इमाम शाह महाराज की शरण में आना पड़ा और कहा, आज के बाद हम आपको या आपके किसी सेवक को तकलीफ नहीं करेंगे। और उनका चरित्र कहता है कि तब ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज की चरण में इसके लिए वो लोग गए थे, इसके लिए उनसे गुरुबोध लिया था, इसके लिए उनके आश्रय में गए थे कि उनके आश्रय में जाने वाले को कोई मुसलमान नहीं बनाता था, वो हिंदू का हिंदू ही रह सकता था। ये वचन मोहम्मद बेगड़ा ने उनको दिया था। इसीलिए उनकी शरण में जा रहे थे, इसीलिए उनके पास जा रहे थे, उनके आश्रय में जा रहे थे सदगुरुदेव के। और उन्होंने अपने कार्य को नहीं छोड़ा। अगर मैंने आपको पूछा कि यहां बैठे किसी के जीवन में ऐसा प्रसंग आया कि आप मंदिर में जा रहे हो और आपके परिवार में से किसी ने जहर लेके आपके सामने बैठ गए, इसको पी नहीं तो मंदिर में जाना बंद कर,
हुआ? आपके साथ ऐसी घटना घटी कि कोई जहर लेके आया? मंदिर में ये जहर पी ले, नहीं तो मंदिर में जाना बंद कर, नहीं तो सत्संग में जाना बंद कर, किसी गुरु के पास जाके बैठना नहीं। कोई जहर लेके आया यहां बैठे हुए किसी के पास? इतनी कसौटी किसके जीवन में आई? नहीं आई। मेरे भी जीवन में नहीं आई, लेकिन मेरे बाप के जीवन में आई थी। उन्होंने उस जहर को भी प्राशन करते हुए दूध में जहर मिक्स करके लाया था, और वो दूध भी पी गए जिसमें जहर था। रुके नहीं, अपने कार्य को शुरू रखा। मैंने खुद जब मेरे गुरुदेव के स्वमुख से सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज का चरित्र सुना था ना बचपन में, तब से ही मेरे जीवन के आदर्श सदगुरु इमाम शाह महाराज बने थे। और तब से हृदय से संकल्प उठा था कि बस अगर जहर पीने के बाद भी ये इस परंपरा को छोड़ते नहीं है, अपने सत्कर्मों को छोड़ते नहीं है, एक दूसरे को जोड़ने का काम चालू ही रखते हैं, तो मुझे जरूर कुछ करना पड़ेगा और मैं उस चीज को करते रहूंगा। मेरे जैसे एक युवान को लगता है इनका चरित्र सुनने के बाद कि अब संसार करना नहीं है, अब तो बस इनकी सेवा में लगना है, तो कुछ तो होगा ना उनके चरित्र में। कोई लड़के की शादी हो, लड़की के साथ तैयारी करनी हो, तो लड़की के चरित्र को देखा जाता है ना, बाद में एंगेजमेंट होती है। लड़की वाले भी लड़के का चरित्र देखते हैं, क्योंकि लड़की वालों को लगता है कि गलत जगह हमारा निर्णय गलत ना हो। जिंदगी का सवाल है। लड़के वाले भी सोचते हैं, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। सोचते हैं कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी ना आप बेटी दे देते हो किसी को, ऐसे थोड़ी हो ना आप किसी को बहू बना लेते हो। सोचते जरूर हो। और ज्यादा सोचता वो लड़का है जिसको शादी बनानी है, ज्यादा सोचती वो लड़की है जिसको शादी बनानी है, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। पूरी जिंदगी उसके साथ निभानी है, उनके साथ रहना है, उनके साथ संबंध रखना है। इसीलिए इतनी सोच होती है, और सोचना जरूरी भी है। तो आप याद करो, आप पता करो, अगर मैंने खुद अगर सतपंथ से शादी लगाई होगी, तो पहले सतपंथ के बारे में सोचा तो होगा ना, कि मुझे पूरी जिंदगी देनी है सतपंथ में, पूरे जीवन भर सत्संग, ये पूरे जीवन भर सतपंथ की परंपरा के साथ ही चलना है। तो हमने भी तो इस परंपरा के बारे में सोचा होगा। जिन्होंने हमें सतपंथ के लिए सौंप दिया, ऐसे हमारे माँ बाप ने भी तो सोचा होगा। उनके लिए तो हम कोई एक ज्यादा बच्चा नहीं था जो पाल नहीं सकते थे, दे दिया मंदिर। किसी माँ के लिए अपना कोई बच्चा ज्यादा नहीं होता। तो उन्होंने भी तो सोचा होगा, हमारे परिवार ने भी तो सोचा होगा कि इसको दान में देना है, कहाँ देना है, क्या करना है, कौन सी परंपरा है, इस परंपरा के उद्देश्य क्या है, सोचा तो होगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना दे दिया। तो मैं बस एक बात जीवन में सोचता हूं कि अगर मैं मेरे माँ बाप के हृदय का अगर एक हिस्सा हूं, और मेरे माँ बाप ने अगर वह दिया होगा, तो इस परंपरा के बारे में सोचा मेरे माँ बाप ने है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तो अब चलना है, क्योंकि माँ बाप के ऊपर मेरी श्रद्धा है। मुझे तो बस अब चलना है, सोचने की जरूरत नहीं है हमें, हम कहाँ आ गए, सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोच लिया उन्होंने जिन्होंने दान दिया, अब मुझे तो चलना है, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चों का खराब करना नहीं चाहते। अभी तो बस हमें चलना है। तो इसीलिए किसी संतों को इस दुनिया ने नहीं छोड़ा। ऐसे कई संत आपको भी याद होंगे। वो जलाराम बापा ले लो, वो बजरंग दास ले लो,
किसी भी संत को याद करो, और कोई एक संत आपको मिल जाए कि जिसकी निंदा नहीं हुई, जिसका विरोध नहीं हुआ, जिसका तिरस्कार नहीं हुआ, जिसको समाज ने बाहर नहीं निकाला, जिसको तकलीफ नहीं हुई, ऐसे एक संत का नाम मुझे बताना। किसी एक संत का नाम मुझे बताना। आपको ऐसे संत नहीं मिलेंगे जिसका विरोध ही नहीं हुआ, जिसको तकलीफ ही नहीं हुई। कोई संत आपको मिलने वाले नहीं है। तो इसीलिए बस हमारे जीवन में होना चाहिए आत्मविश्वास। इतनी दृढ़ श्रद्धा अपने गुरु के वचनों पर हरिश्चंद्र की थी कि इतनी कसौटी, खुद को बेच रहा है लेकिन कोई परेशानी नहीं, वो भी तैयार हो गया। इतनी दृढ़ श्रद्धा अपने गुरु के वचनों के ऊपर। तो इसीलिए मेरे कहने का भाव बस इतना था, हम आत्मविश्वास से जीवन को जीने की कोशिश करें। अपने जीवन में आत्मविश्वास हो, कुछ करने की चाहत हो। कल हम गए थे ना प्रदर्शनी देखने, तो ये सारी हमारी सारी की सारी बहनें जो और भाई लोग वहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, पूरा मज़ा आ रही थी। वैसे तो ये जो पूरी प्रदर्शनी की स्क्रिप्ट बनी थी पिराना में, तब से हम उसके साथ में थे, क्या क्या बनाना है, क्या उसमें लिखना है, वो पता था। लेकिन मैंने साहब को बोला था कि हमें वहाँ जाके उनको सुनना है, वो क्या बोलती है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है कि हाँ, हम संतों के सामने भी बोले थे। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने कल हम 1.5 घंटा वहाँ रुके थे, कल कथा पूरी होने के बाद। जहाँ तो पूरी शांति हो गई थी पूरे ग्राउंड में। उसके बाद हम यहाँ से गए थे। मुझे बस इनके आत्मविश्वास को बढ़ाना था, जो वहाँ पर समय दे रही थी प्रदर्शनी में। और एक लड़की जो थी वहाँ की, जो भी भाई लोग थे, इतना अच्छी तरह से आत्मविश्वास से बस उन बातों को कहे जा रहे थे, दिल को खुशी हो रही थी। और मैंने सोचा कि चलो ये जो बोल रही है ना, अगर कोई समझे ना समझे, लेकिन जो बोल रही है वो भी सुधर जाए और जीवन भर इतनी सी बात को याद रखे तो कथा सफल है, ये प्रदर्शनी सफल है। वो खुद भी समझ जाए अकेली, इस बात को याद रखती है तो। इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी ड्यूटी तो वह है बोले, लेकिन वहां मन नहीं लगता, कथा में ही बैठते। उन सब के लिए एक बार हम ताली बजाते हुए उनका अभिवादन करें। आपने मुलाकात की कि नहीं? वहां करी?